Yes, till now we have discussed in this chapter before non-cooperation movement. Okay, हमने non-cooperation movement और खिलाफत issue we have discussed till now, ना यहाँ तक क्या था? ठीक है, अभी next इसके बाद यानी कि हमने किया था बेटा लास्ट जो हमारा लेक्चर था पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन डिफरेंट एरियाज. क्लियर? इसमें हमने कुछ एरियाज जो है वो कवर किए थे कि अलग अलग ग्रुप्स ने कैसे पार्टिसिपेशन की. पीजेंट्स एंड फार्मर्स, आंध्र प्रदेश, गुजरात, देन उसके बाद अलग अलग स्टेट्स जैसे सिंध पाकिस्तान, देन यू कैन से असम प्लांटेशन वर्कर्स. इन ईच एंड एवरी स्टेट द group of some people they participated in non cooperation movement. लेकिन यहाँ पे हमने ये बताना है that somehow all those people they took the meaning of non cooperation in their own way and many they started they used you can say violent methods. ठीक है, like some of the peasants and farmers they were against the rich landlords because they had to pay high taxes to the rich landlords. They attacked on the storehouses of rich landlords. That was not the, you can say, non-violent method. Then many Assam planter workers, Assam plantation workers, they broke contracts and that's why they came back. That was not good. That was not, you can say, non-violent method. And many forest people, tribal people, they also participated in non-cooperation movement, but their method was to enter in the forest areas to break the rules and regulations and they refused to pay taxes. So according to them this was non-cooperation. According to them उनको ये लगा कि महात्मा गांधी जी ने non-cooperation का मतलब क्या है, to break the rules and regulations, to enter in the forest areas and they knowingly sent their animals in the forest areas for grazing. So it was not a, you can say, non-violent method. So what was a non-violent method according to Mahatma Gandhi ji? महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि non-violent method का मतलब है peaceful protest without harming another, not to torture physically, not to attack, not to kill anyone. ठीक है, not to break rules and regulations. इसका मतलब क्या है कि their method was to follow truth and if your cause is true then you will be definitely win because सत्यमेव जयते, truth always trumps. लेकिन महात्मा गांधी जी की इन पॉलिसी को कई लोगों ने नहीं फॉलो किया एंड द पीपल्स महात्मा. यहाँ पे आपका एक छोटा सा टॉपिक है पीपल्स महात्मा का मतलब क्या है कि लोगों ने उनको महात्मा नाम दिया. नाम उनका क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी. लेकिन लोगों के लिए वो महात्मा क्यों थे? रीजन क्या था? Because when in 1915 he came from South Africa. In South Africa also he faced policy of racial discrimination there, discrimination between black and whites. ठीक है, when he came here and he, you can say, devoted whole of his life to serve the society. अलग अलग ग्रुप्स के लिए उन्होंने जो है सोसाइटी के लोग ग्रुप्स के लिए उन्होंने अपनी लाइफ जो है that he gave sacrifice. When he came he you can say visited many places like Champaran in Bihar, Kheda, Gujarat, Ahmedabad, and he convinced the followers, workers, mill workers, peasants to oppose if you can see if they are facing exploitation. तो इसमें हमने बताना है पीपल्स महात्मा. लोगों ने उनको महात्मा क्यों कहा? Because he supported poor people, poor farmers. किनको सपोर्ट किया ये मेन बताना है. क्यों लोग उनको महात्मा कहते थे? वर्कर्स को सपोर्ट किया. तो इसमें आप बता दोगे कि वर्कर्स दे वर गेटिंग लो वेजेस एंड दैट्स व्हाई. ठीक है, देन मिल वर्कर्स यानी कि जो मिल्स में काम करते थे, मिल वर्कर्स. देन लेबर, जो लेबर का काम करते थे. ठीक है, सो महात्मा गांधी ही सपोर्टेड दीज ट्राइबल्स आल्सो. ट्राइबल्स को भी सपोर्ट किया. वो अलग बात है कि ट्राइबल्स ने नॉन कॉपरेशन का जो मीनिंग है वो अपने अकॉर्डिंग लिया. ठीक है, देन महात्मा गांधी आल्सो सपोर्टेड दलित पीपल, लोअर कास्ट दलित्स. उनको उन्होंने क्या कहा? हरिजन. ही कॉल्ड दलित पीपल, लोअर कास्ट, जिनको लोग पहले अनटचेबल्स कहते थे, इन्होंने इनको क्या कहा? हरिजन. हरिजन मतलब, हरि का मतलब होता है गॉड, जन मतलब पीपल. पीपल्स
यू कैन से लाइक चिल्ड्रन, हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यहाँ पे हरिजन का मतलब क्या है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसका मतलब है कि उन्होंने किसी भी तरह से कास्ट सिस्टम जो है उसको फॉलो नहीं किया। महात्मा गांधी आल्सो अपोज्ड कास्ट सिस्टम। इन्होंने कास्ट सिस्टम को क्या किया? अपोज की, इसीलिए उनको लोगों ने क्या दिया? महात्मा। ठीक है, देन और क्या आपने बताना है? दैट ही आल्सो, yes, he also convinced many people for movements and he united different communities together, like in non cooperation खिलाफत इशू। आपने पढ़ा खिलाफत इशू, नॉन कॉपरेशन, किनको उन्होंने इकट्ठा किया था? हाँ जी, किसको इकट्ठा किया था? कौन से दो रिलीजन्स को इकट्ठा किया? हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदू एंड मुस्लिम्स यूनिटी है ना। He started many movements। उनका मोटिव क्या था? रैलीज, पीसफुल प्रोटेस्ट, सत्याग्रह। तो ये सारे कंसेप्ट आपने इसमें बताने हैं कि व्हाई ही वाज कॉल्ड महात्मा। एंड उनका जो जिसे हम कहते हैं फिलॉसफी, गांधीयन फिलॉसफी। बहुत से लोगों ने बोला जब गांधी राज का मतलब द रूल in between, the rule in which rules and regulations of Mahatma Gandhi will prevail। ठीक है, सेल्फ रूल, एक ऐसा टाइम जिसमें गांधी राज आएगा। गांधी राज का मतलब क्या है? एक ऐसा टाइम जिसमें महात्मा गांधी की जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ब्रिटिशर्स कंट्री में ना हो, सेल्फ रूल हो। तो इस तरह से लोगों को जो है वो उस टाइम पीरियड में एज ए नेशनल लीडर महात्मा गांधी को क्या माना गया? नेशनल लीडर। एंड यू कैन सी वन पिक इन योर बुक जिसमें उनको दिखाया गया है ड्राइविंग चैरियट, यानी कि गॉड की तरह, यानी कि कुछ ने उनको डिवाइन का मतलब होता है पैंथियन ऑफ इंडियन गॉड्स, और पैंथियन मतलब जिसे हम कहते हैं कि ही इज गोइंग टू ड्राइव, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेवियर ऑफ सोसाइटी, सेवियर जो सोसाइटी को क्या करेंगे? सेवियर, सोसाइटी को बचाएंगे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी इनके साथ। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आपने बताने हैं। व्हाई ही वाज कॉल्ड महात्मा, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन राइट इन दिस। नेक्स्ट, अब इसके बाद फिर हमने करना है व्हाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि जिस टाइम पीरियड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे पीक में थी, व्हाट वाज द रीजन व्हाई ही कॉल्ड ऑफ, क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्यों इसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आपने बताने। सबसे पहले तो एज यू नो दैट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीपल इन द सिटीज, ठीक है, दे पार्टिसिपेटेड एंड मैनी टीचर्स दे लेफ्ट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन स्कूल्स, स्टूडेंट्स आल्सो लेफ्ट स्कूल। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी, पहले हमने बताना है व्हाई इट स्लो डाउन। ये रीजन बताओ व्हाई इट स्लो डाउन, क्यों स्लो हो गई थी, व्हाई। ठीक है, सबसे पहले ये बताओगे, उसके बाद फिर हमने बताना है कि इसको वापस क्यों लिया। स्लो डाउन, नंबर 1 आपने बताना है नो इंडियन इंस्टीट्यूशंस, नो इंडियन इंस्टीट्यूशंस। तो एक्सप्लेन करोगे that in non-cooperation movement many city people, teachers, they left schools, students they left schools, but at that time there was no Indian institution। उन्होंने इंग्लिश स्कूल को छोड़ दिया, 3 months 4 months वो घर में रहे, लेकिन उस टाइम पीरियड में कोई इंडियन स्कूल्स नहीं थे, इंडियन कॉलेजेस नहीं थे। तो बच्चों ने फिर से क्या किया? रीज्वाइन, टीचर्स दे रीज्वाइन ब्रिटिश स्कूल्स। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सम पीपल दे वर फेड अप, पीपल दे वर फेड अप from the movements। अब क्या होता है आंदोलन में, आप शुरू में तो बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करो, 3 months 4 months, कितनी देर आप बढ़ चढ़ के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो। तो बहुत से लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया, बट लेटर ऑन वो अपने अपने काम पे वापस चले गए। तो इसलिए भी नंबर ऑफ पीपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, थर्ड, आपको याद होगा मैंने बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने बॉन फायर किया था, बॉयकॉट किया था फॉरेन गुड्स का। लेकिन अब
हमारी कंट्री में हम ये कह सकते हैं कि जो खादी जो थी जिसके लिए बहुत स्ट्रेस दिया गया वॉज एक्सपेंसिव। लोगों ने कहा कि बॉयकॉट करो, किसको बॉयकॉट करो? फॉरेन क्लोथ, फॉरेन गुड्स को। लेकिन हमारी कंट्री में जब स्वदेशी के ऊपर स्ट्रेस दिया गया तो खादी वॉज एक्सपेंसिव फॉर पुअर पीपल। पुअर पीपल कुडंट बाय खादी, वो लोग खादी नहीं खरीद सकते थे बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली। तो लोगों ने धीरे धीरे फिर क्या किया, जिन लोगों ने पहले बॉनफायर में पार्टिसिपेट किया भी, धीरे धीरे उन्होंने फिर से चीप मशीन मेड क्लोथ, क्योंकि मशीन मेड क्लोथ उस टाइम सस्ता था एज कम्पेयर टू खादी। नो डाउट वो वेस्टर्न था एंड हम ये कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट तो किया, but later on poor people couldn't use khadi, so that's why they started buying again foreign goods and foreign clothes. तो इसका जो मेन आइडिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, फोर्थ फिर हमने बताना है, some people they form different political parties। कुछ लोगों ने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इनमें से एक पार्टी बनी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, कुछ लोगों का मानना था कि मूवमेंट्स में नहीं बल्कि पार्टीज बनाओ, इलेक्शंस में आओ और अपनी जो भी डिमांड्स है वो ब्रिटिशर्स को इलेक्शंस में आकर, यानी कि इलेक्शंस कंटेस्ट करके, यानी कि अब उनका मानना था कि हम किसी और वे मूवमेंट में नहीं बल्कि हम पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में एक ही पार्टी बहुत फेमस थी, कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लीडर्स ने एक अलग से पार्टी बना ली। इनमें लीडर्स जो थे, कुछ ऐसे लीडर्स थे, उनका नाम क्या था? सीआर दास, याद रखो बेटा, सीआर दास। एंड दूसरे कौन थे? मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, अपनी अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना ली और इस तरह से काफी लोग इनके साथ हो गए और इस तरह से हम नंबर ऑफ कह सकते हैं कि पीपल रिड्यूस इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंड लास्ट जो था वो क्या था? चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट। अब इस इंसिडेंट को हमने एक्सप्लेन करना। दिस वाज द मेन रीजन व्हाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, कुछ गुस्से में लोगों ने क्या किया, पहले प्लेस का नेम याद रखो, उत्तर प्रदेश गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर में प्लेस का नाम है चोरी चोरी। यहाँ पे क्या किया, सम इंडियन पीपल दे बर्न्ट द पुलिस स्टेशन एंड इन दिस पुलिस स्टेशन 22 police officers were killed. 22 police officers were killed and the movement turned violent। यानी कि जो महात्मा गांधी जी का मेन मोटिव था नॉन वायलेंस, मूवमेंट turned violent, clear? And that's why at that time many people like Mahatma Gandhi, he wanted to slow, you can say, call back नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वो नहीं चाहते थे कि लोग जो हैं वो गुस्से में अटैक करें और इस तरह से मूवमेंट को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। सो दैट्स व्हाई महात्मा गांधी जी ही कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है वापस बंद कर देना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट इन 1922। ठीक है, ये सारा रीजन बना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बंद होने का। 1922 के बाद अब हमारी हिस्ट्री है, अब हमने पढ़ना है आगे नेक्स्ट 1922 के बाद क्या हुआ, किस तरह से महात्मा गांधी जी ने अलग एक और मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की। लेकिन इन बिटवीन अब हम बढ़ेंगे वो टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में क्या हुआ। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद रखो 1921 में शुरू हुई, 22 में खत्म हो गई। 22 में एक और इम्पोर्टेंट क्या हुआ, अब डेवलपमेंट्स। अब हमने बताना है कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स 1920s। 1920s मतलब 20s मतलब 20 के बाद वाले ईयर्स। 21 हमने पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1922 चोरी चोरा इंसिडेंट।
अब आगे हम पढ़ेंगे कि आगे इसके बाद 1922 में और क्या पढ़ा हमने, स्वराज पार्टी बनी। 2 लीडर्स के नेम याद रखो, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। इनकी आइडियोलॉजी जो थी अलग थी, ये मूवमेंट्स में नहीं बल्कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको राइट्स दे इलेक्शंस का, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ताकि इलेक्शन लड़के ये लॉ मेकिंग में अपना जो है वो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे सके। ठीक है, अब इनमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में एक आपने याद रखना है, RSS बनी और एक बनी CPI पार्टी। RSS क्या थी, एसोसिएशन, और CPI क्या थी, पार्टी। इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। RSS एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली कहा जाता है कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। संघ मतलब क्या होता है, एसोसिएशन। मेनली ये माना जाता था कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी, जो काइंड ऑफ उनका एक अलग से अपने हिंदू मेथोडोलॉजी या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस या उनके रिचुअल्स जो हैं उनको आगे प्रिजर्व करना। ऐसी एक और ये बनी पॉलिटिकल पार्टी 1920s में, एक और जो है वो CPI पॉलिटिकल पार्टी बनी। इसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनका मेन थीम क्या था, टू ब्रिंग रेवोल्यूशन, कंट्री में रेवोल्यूशन लाकर गवर्नमेंट को चेंज करना, फार्मर्स को सपोर्ट करना। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI बनी। तो 1920s यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बंद हो जाने के बाद 3 महीने याद रखो, स्वराज पार्टी, RSS की डेवलपमेंट हुई, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की डेवलपमेंट हुई, काफी हिंदू जो थे जिन्होंने इसका मेंबर बने, कुछ लोग स्वराज पार्टी के मेंबर बने, कुछ CPI यानी कि CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनके मेंबर्स बने। तो इन लोगों के अपने अपने व्यूज थे और इस तरह से सभी जो थे उनका अल्टीमेटली मोटिव क्या था, टारगेट क्या था, टू एंड ब्रिटिश रूल एंड टू फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे अब 1927। फिर 1927 का एक इंपॉर्टेंट ईयर जिसमें हमारा मेन टॉपिक क्या है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन जो है इसका पूरा नोट, शॉर्ट नोट, इसके लिए हमने क्या बताना है, क्या था ये 1927 में साइमन कमीशन लंदन में बना था। इट वाज फाउंडेड इन लंदन। वाई बना, क्यों, हमारे इंडिया में 1919 में एक एक्ट पास हुआ था, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एक्ट में कुछ चेंजेस करना चाहती। लोग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स, सजेशंस, न्यू लॉज, एक्ट्स पास करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक कमीशन बनाया। इस कमीशन को कहा जाता है साइमन कमीशन। क्यों, क्योंकि इसके जो हेड थे उनका नाम क्या था, सर जॉन साइमन, और इनको मिलाकर टोटल कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स। ऑल वर ब्रिटिशर्स, सभी ब्रिटिशर्स थे। दिस वाज अ मेन प्रॉब्लम एंड ब्रिटिश लंदन की जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ क्वीन, they decided that Simon Commission will come in India in which year, 1928। 1928 साइमन कमीशन, मतलब दोनों सारे जो जितने भी मेंबर्स थे, they came in India. What when Indians they got knowledge about Simon Commission and their members,
One thing they were not agreed upon that all the members are British. No Indian, कोई भी इंडियन नहीं है. No Indian member in this. Why? अब इंडियंस जो हैं उनको क्या चाहिए? रिफॉर्म्स. ठीक है, क्या सजेशन है या फिर नए लॉज क्या चाहिए, पुराने लॉज खत्म करो, ये तो इंडियंस ही बता सकते हैं ना. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि इफ नो इंडियन इज देयर तो व्हाई टू फॉर्म दिस साइमन कमीशन. तो इस कमीशन में इंडियंस भी होने चाहिए, लेकिन उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई. एंड आपको पता जब साइमन कमीशन हमारी कंट्री में आए तो दे वर नॉट वेलकम. अब आप खुद सोचो कि गेस्ट आ रहे हैं, हम उनको वेलकम ना करें. और उनको क्या दिखाए गए? ब्लैक फ्लैग्स. ब्लैक कलर मीन्स नॉट टू कोऑपरेट विद यू एंड नॉट सपोर्टिंग. तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? साइमन गो बैक. साइमन गो बैक. साइमन मतलब सर जॉन साइमन, और उनका कमीशन जो है वो वापस चला जाए. हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आकर हमारे लिए क्या करें, लॉ बनाए या सजेशंस दें. और किसके लिए? हाँ, पर आप ये देखो कि रिफॉर्म्स इंडियंस क्या चाहते हैं इनसे नहीं पूछा गया. व्हाट इंडियन वांट. ठीक है, इंडियंस को ये इस चीज का मेन जो है वो पॉइंट उन्होंने रखा कि सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स हैं, कोई भी इंडियन नहीं है. अगर इंडियन, अब इंडियन ही इंडियन के प्रॉब्लम्स को समझेंगे ना, हमें क्या चाहिए ये तो हम ही समझ सकते हैं. कोई और आकर हमारे लिए नए लॉ बनाए तो दैट्स व्हाई इंडियन वांटेड दैट इन दिस कमीशन इंडियंस शुड आल्सो इंक्लूड. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. सो दैट्स व्हाई जो मेनी पीपल दे आउटरेज अपोज दिस साइमन कमीशन. इसलिए उन्होंने कौन से नारे लगाए? साइमन गो बैक. और इसमें लाला लाजपत राय बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा था, एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे, उन्होंने इनको अपोज किया और लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया. और इस लाठीचार्ज के ऊपर बाद में लाला लाजपत राय जो है उनकी डेथ हो. ठीक है, तो वैसे आपने टॉर्चर पढ़ा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, उसके बाद ये वाला लाला लाजपत राय की डेथ हुई, इसका भी लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा था. ठीक है, और बाद में लाला लाजपत राय जो है उनकी डेथ का बदला भी लिया गया, रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने, है ना. तो इस पर्टिकुलर ईयर यानी कि 1928 क्यों याद रखा जाता है हिस्ट्री में? साइमन कमीशन जो है उसको अपोज किया गया. ठीक है, तो ये मेन रीजन था जिसके कारण साइमन कमीशन बिना किसी डिसीजन के, बिना किसी रिफॉर्म्स के दे वेंट बैक, वापस चले. इसका मतलब है 1928 तक भी किसी भी तरह से नई कॉन्स्टिट्यूशन का नए रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश नहीं हुए. अब इसके बाद फिर 1928 के बाद फिर एक इंपॉर्टेंट ईयर आया 1929. इसको भी हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत जो है इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है. क्या हुआ? साइमन कमीशन चला गया वापस बिना किसी डिसीजन के, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने. अब 1929 में कांग्रेस के लीडर्स आईएनसी, इनके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पीरियड में? पंडित जवाहरलाल नेहरू. लाहौर में सेशन बुलाया गया. सेशन का मतलब होता है मीटिंग. 1929 में लाहौर में सेशन बुलाया गया और इन बिटवीन उस टाइम पीरियड में जो लॉर्ड वायसराय इरविन, जो उस टाइम पीरियड में वायसराय थे ना हमारी कंट्री के, उन्होंने क्या किया? इंडिया को डोमिनियन स्टेटस बना दिया. डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस दे दिया. बच्चे ये वर्ड ध्यान से सुनो. डोमिनियन का मतलब होता है, डोमिनियन का मतलब क्या है कि प्रोविंशियल यानी कि जो स्टेट लेवल के ऊपर इंडियंस को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने दिया गया, लेकिन पूरी कंट्री को कंट्रोल कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स. यानी कि पार्शियल जो है वो ऑटोनॉमी दे दी. पार्शियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी इंडिया में स्टेट्स हैं, ठीक है, ऐसे ही उस टाइम पीरियड में, ब्रिटिश टाइम पीरियड में प्रोविंसेस होते थे. ठीक है, जैसे आज के टाइम पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, पुराने टाइम पीरियड में सेंटर यानी कि एक पूरी कंट्री और उसके अंडर प्रोविंसेस होती थी. तो इन प्रोविंसेस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनियन का मतलब क्या होता है कि इंडियंस जो है कंट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, लेकिन पूरी कंट्री को उनको किनसे परमिशन लेनी पड़ेगी? ब्रिटिशर्स से. लेकिन कांग्रेस लीडर्स जो एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो डोमिनियन नहीं चाहते थे, they were not satisfied with this. What they wanted पूर्ण स्वराज. पूर्ण स्वराज. इनको उन्होंने क्या नाम दिया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस. इन्होंने कहा कि हमें आधी नहीं, क्या चाहिए? पूरी स्वतंत्रता चाहिए, कंप्लीट, पूरी आजादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस.
ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कांग्रेस के लीडर्स को बुलाया 1929 में लाहौर सेशन में। उन्होंने प्रपोजल पास किया कि हम क्या करेंगे, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्र मान रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने एक डेट डिसाइड की। ये हुआ था लाहौर सेशन दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में हुआ। अगले साल यानी कि दिसंबर के बाद जनवरी, मंथ ईयर चेंज हो गया, 26 जनवरी 1930। इस सेशन में क्या डिसाइड किया, अब फिर से देखो लाहौर सेशन क्या है। अगर मैं ये पूछती हूँ कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय लाहौर सेशन, लाहौर सेशन क्या था, लाहौर सेशन का इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा, 1929। क्यों, किसका सेशन, आईएनसी का। मेन प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किसके अगेंस्ट, क्यों बुलाया, क्योंकि एट दैट टाइम वायसराय इरविन ही डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ डोमिनियन कंट्री। लेकिन कांग्रेस लीडर्स वर अगेंस्ट दिस because they wanted पूर्ण स्वराज, complete independence चाहते थे. And that's why in this session proposal was passed कि चाहे हमें ब्रिटिशर्स आजादी दे या ना दे, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, इंडिपेंडेंट। और हम 26 जनवरी को 1930 को सारे लोग इकट्ठे होंगे और रावी रिवर के बैंक जो किनारे होते हैं ना, वहां पर उन्होंने क्या किया, प्लेज लिया, प्लेज, ठीक है। प्लेज क्या लिया कि हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्र। पूर्ण स्वतंत्र का मतलब होता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट, ठीक है, प्लेज। तो उन्होंने क्या किया, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया, ठीक है। एंड दे होस्ट द फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया। देखो कितने उसमें हिम्मत थी कि ब्रिटिशर्स के होते हुए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को अपना एक अलग इंडिपेंडेंस डे मनाया। अब इसी दिन को याद करने के लिए, जब हमारी कंट्री को आजादी मिली, फ्रीडम मिली, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पता कब बन गया था, 26, हाँ अरेस्ट किया, हाँ 26 नवंबर 1949 को बना था हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसको अडॉप्ट कब किया, 26 जनवरी। और हम 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। क्यों, हाँ इंडिपेंडेंस पर इन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था अपने आप कि वी आर डिक्लेयरिंग आवर सेल्फ इंडिपेंडेंट, कि हम अपने आप को अपनी आजादी के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं। डू एंड डाई, कुछ भी करो, अपनी आजादी के लिए कुछ भी करना पड़े, वी विल सेक्रीफाइस आवर लाइफ, वी विल सेक्रीफाइस आवर फैमिलीज। तो उस प्लेज में उन्होंने कहा कि हम अपनी कंट्री को आजाद करवाने के लिए हर तरह से एफर्ट्स करें। तो दैट्स व्हाई, अगर हम कहते हैं ना कि व्हाई द इम्पोर्टेंट डेट 26 जनवरी, 26 जनवरी को ही हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंप्लीमेंट किया, रीजन क्या किया, क्योंकि इस दिन की इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में थी। बिकॉज ऑन दैट डे पंडित जवाहरलाल नेहरू नियर द रावी रिवर, ही टुक प्लेज विद मैनी अदर लीडर्स एंड दे होस्टेड फ्लैग नियर द रिवर रावी, ठीक है। तो ये है पूरा लाहौर सेशन। लाहौर सेशन की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि 1929 में लाहौर सेशन को बुलाने का क्या मेन मोटिव, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एक और कंट्रीब्यूशन जो है वो हम नहीं भूल सकते, दैट इज शहीद भगत सिंह। इसी पर्टिकुलर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेजर डेवलपमेंट्स 1920s। शहीद भगत सिंह, कंट्रीब्यूशन ऑफ शहीद भगत सिंह एंड मैनी अदर रेवोल्यूशनरीज। हाँ जी, शहीद भगत सिंह का जो कंट्रीब्यूशन है रेवोल्यूशनरी, इनको माना जाता है रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी कौन होते हैं, जो रेवोल्यूशन लाकर गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं। और वायलेंस, यानी कि उनके लिए वायलेंस, दे आल्सो सपोर्टेड वायलेंट एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसमें हमने क्या बताना है कि जो भगत सिंह थे उनके साथ उनके कुछ लीडर्स थे, राजगुरु, सुखदेव, तो ये रेवोल्यूशनरी, हाँ इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे। तो ये किनके मेंबर थे, HSRA, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, HSRA, he was the member और many people were members of this association। इसका फुल फॉर्म याद रखो आप, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। और ये कब बनी थी, 1928 में ये एसोसिएशन बनी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ,
आपको याद होना चाहिए कि शहीद भगत सिंह जी ने क्या किया, 1929 को सेंट्रल असेंबली यानी कि हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स की मीटिंग हो रही थी तो इन्होंने क्या किया, ही ड्रॉप्ड अ बॉम्ब, इन्होंने बॉम्ब फेंका, लेकिन उस बॉम्ब से ना किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अल्टीमेटली इन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना वो डेफ एंड डम्ब है, हम उनको उनकी आवाज में मतलब धमाका करके सुनाएंगे ताकि उनको पता लगे कि हम भी बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया, राजगुरु, सुखदेव और बहुत से लीडर्स को अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें उनके ऊपर चार्ज लगा दिया, एंड बाद में ही वाज कैप्चर्ड, एग्जीक्यूटेड, तीनों को इकट्ठी फांसी जो है वो लगाई गई। ये आपने सुनाई है सारी, है ना। तो इंकलाब जिंदाबाद जो है वो नारा जो है वो बहुत फेमस हुआ, ठीक है। देन अब आपने भगत सिंह जो है इनके रिलेटेड मूवीज या सॉन्ग्स वगैरह देखे होंगे, तो किस तरह से उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ हमारी फ्रीडम के लिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ शहीद भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एंड मैनी अदर लीडर्स, चंद्रशेखर आजाद, शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह जी ने क्या किया था, जलियांवाला बाग का बदला लिया था, और इन्होंने बाद में फिर जनरल डायर को मारा था लंदन जाकर, शहीद उधम सिंह, उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारी कंट्री में चाहे हमने पढ़ा है मॉडरेट्स, चाहे हमने एक्सट्रीमिस्ट पढ़े हैं, चाहे हमने रेवोल्यूशनरीज पढ़े हैं, इन एनी वे सबका टारगेट सेम था, गेटिंग इंडिपेंडेंस। व्हाट वे वाज डिफरेंट, वे वाज डिफरेंट का मतलब होता है हर एक के मेथड थे, किसी का मेथड नॉन वायलेंस था, किसी का मेथड वायलेंट था, किसी का मेथड मूवमेंट था, किसी का मेथड पॉलिटिकल पार्टीज बनाना था। तो हमने जितना भी पढ़ा है दैट इज द डिफरेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल पीपल, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम कल करेंगे दांडी मार्च एंड सीडीएम मूवमेंट, दांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट?